میں بہت ہی ادب سے احترام سے پروفیسر شمشاد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ السلام علیکم. مجھے کسی امید کیا تمام کو سلام اور آداب. میرے متعلق عنوان نہیں جسے غالب اور عالمی انسانی قدریں. جی توجہ چاہوں گا. اردو شاعری کی تاریخ میں شاید غالب وہ پہلا شاعر ہے جس نے انسان اور خدا کے رشتے کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کی. غالب کا زمانہ عدم استحکام، انارکی اور تہذیبی کشمکش کا زمانہ تھا. غالب کی بحث ظاہر سے ہو یا باعث سے، وہ انہیں اور ان کے تمام پیروکاروں کو ہر معاملے میں وسیع تناظر میں دیکھنے کی دعوت دیتا ہے. وہ بار بار انسانوں کو خود شناسی کے ذریعے تسکین اور راحت کا راستہ دکھاتا ہے. غالب کے ذہن میں انسان ہی محور و مرکز ہے. اگر غالب کی بات تسلیم کر لی جائے تو تمام عقائد و رسوم کی قیود سے آزاد ہو کر انسان اس کائنات میں اپنا مقام حاصل کر سکتا ہے. منظر بلندی پر اور ہم بنا سکتے، منظر بلندی پر اور ہم بنا سکتے. عرش سے ادھر ہوتا کاش مقام نہ. غالب کے نزدیک انسانی قدر اتنی زیادہ ہے کہ عرش سے پرے انسان کو پہنچا دیا، جبکہ ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو کر ہر ایک کے سامنے جھکنے کو تیار ہو جاتے ہیں. عزت و منزلت کی قدر نہیں، جبکہ غالب پیاسے جان دینے کو تیار ہے مگر اس دریا سے منتفع ہونے کو تیار نہیں جس کی لہریں غالب کو دیکھ کر ٹھٹر جائیں. غالب اپنے زمانے کی خوشامدیوں سے اتنے بدل تھے کہ حسینوں کی محفل میں بھی اس کی دعوت دینے سے ہچکچانے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر ہی خوشامدی ہونے کا شبہ ہو جائے. بس میں بتا میں سخن آرزو لبوں سے تنگ آئے ہیں ہم ایسے خوشامد لبوں سے. میں ہوں اور افسردگی کی آرزو غالب کے دل دیکھ کر طرزِ تپاک اہل دنیا چل گیا. اردو خودداری کا یہ عالم تھا جس کی طرف ہماری فدیہ میڈم نے بھی اشارہ کیا کہ دہلی کالج میں وہ انٹرویو دینے گئے مگر لوٹ آئے. واقعہ یہ ہے کہ 1842 عیسوی میں غالب کو حیثیت استاد فارسی تقرری کے لیے دہلی کالج مدعو کیا ہے مگر الٹے پاؤں واپس آ گئے. وجہ یہ تھی کہ مسٹر ٹامسن ان کے استقبال کے لیے باہر نہیں آئے. مسٹر ٹامسن سیکریٹری حکومت ہند کو سبب معلوم ہوا تو انہوں نے مرزا غالب سے کہا آپ دربار گورنری میں تشریف لائیں تو آپ کا استقبال کیا جائے گا، لیکن اس وقت آپ نوکری کے لیے آئے ہیں. غالب کا بے مثال جملہ سنیے جو انسانی احترام کا اعلیٰ نمونہ ہے. حال ہی کے الفاظ جو جنہوں نے یادگار غالب میں نقل کیا ہے اور مرزا غالب نے کہا گورنمنٹ کی ملازمت کا ارادہ اس لیے کیا ہے کہ اعزاز کچھ زیادہ ہو، نہ اس لیے کہ موجودہ اعزاز میں بھی فرق آئے. صاحب نے کہا ہم قاعدے سے مجبور ہیں. مرزا صاحب نے کہا کہ مجھ کو بھی اس خدمت سے معاف رکھا جائے اور یہ کہہ چل جائے. غالب فکری آزادی کے لمبردار تھے. انہیں ہر مذہب میں حق پرست نظر آتے ہیں، جبکہ ہر زمانے میں غالب کا دور ہو جائے کہ عہد حاضر فرقہ وارانہ عصبیت ایک بڑا مسئلہ ہے اور آج بھی ہے. انسانوں کا خون مذہب اور مسلک کے نام پر بہایا جاتا ہے. عبادت گاہوں کی تقدس کو پامال کیا جاتا ہے. غالب کی شکایت یہ ہے کہ زمانہ نیکی کا بدلہ برائی سے دیتا ہے. کہوں کیا خوبی ہے اوضاع ابنائے زماں. غالب بدی کی اس نے جس سے ہم نے کی تھی بارہا نے کی. پانی سے سخت گزیدہ ڈرے اس طرح سخت ڈرتا معائنے سے گزیدہ. یعنی جس طرح کتے کا کاٹا آدمی ڈر کی وجہ سے پانی کے قریب نہیں جاتا، اسی طرح ہم دنیا والوں سے کرتے ہیں. نہیں اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو. بے در و دیوار سے گھر بنایا چاہیے کوئی ہمسایہ نہ ہو اور آسماں کوئی نہ ہو. غالب کا کہنا تھا کہ شکایت نہ کی جائے اور ہمت کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے. کوشش بابر ثابت نہیں ہوتی تو شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں. معاشرہ پورا کا پورا خراب ہو چکا. چنانچہ معاشرے سے کیا حاصل، ہم اپنا راستہ خود تلاش کریں. غالب کے زمانے سے آج تک بہت سارے مسلم قوم پیدا ہوئے. انفرادی اور اجتماعی ہر طرح کی کوششیں کی جا چکی ہیں مگر حالات میں کوئی خاطر خابیت نظر نہیں آتی. غالب واعظوں، ناصحوں اور زاہدوں کی بتائی ہوئی راہ کے بجائے خود راستے کا انتخاب کرتے ہیں. غالب رواداری، امن اور دوستی کو معاشرے اور کائنات کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. یہی عالمی انسانی قدروں کی بنیاد. غالب کی نظر میں آدمی اور انسان جدا جدا. آدمی تو سبھی ہے مگر ضروری نہیں کہ وہ انسان بھی ہو. بس یہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا. بس یہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. غالب کی تلاش کی نوعیت ذاتی نہیں.
बल्कि पैगम्बराना है। पैगम्बर इंसान के हमदर्द होते हैं, उनकी अपनी जाती ख्वाहिश पसंद और नापसंद की अहमियत नहीं होती, उनका खास मकसद और मिशन होता है जो सालेह मुआशरा और इंसानियत दार के लिए होता है। क्या फर्ज है कि सबको मिले एक साथ जवाब? क्या फर्ज है कि सबको मिले एक साथ जवाब? आओ ना हम भी सैर करें। कोई नहीं, ये है गालिब जिसे मूसा अलैहिस्सलाम भी ना देख सके, उसे वो देखना चाहते हैं। उनके ख्याल में अपने आप को जमाने आजमाने में क्या मजा है? यहाँ पर पैगम्बराना दर्द गालिब के अंदर पैदा, फना को सौंप कर मुश्ताक है अपनी हकीकत का, फना को सौंप कर मुश्ताक है अपनी हकीकत का, फरोग ताले खाशाक है मौकूफ उल्खन था। यानी अपनी हकीकत को मालूम करने के लिए अपनी खुदी को खत्म करना पड़ेगा। जैसे घास खुद जलकर दूसरों के लिए हरारत पैदा करते हैं, तो गालिब तेरे ज़हन में अपनी अपनी अहमियत खत्म हो जाएगी, तुझे तेरे वजूद का पता चल जाएगा। उसको दूसरे शेर में यूं कहते हैं, होता है निगाह गर्द में सिहरा मेरे होते, खिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। दरिया को देखिए, पानी का कितना वसी फैलाव होता है, लेकिन रवानी के लिए उसे पेट के बल अपने आप को रेत पर घसीटना पड़ता है और आगे बढ़ने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। दरिया पहाड़ों और मैदानों से उतर कर समंदर की सतह पर पहुंच जाता है, गोया कि खुद को खत्म कर देता है। बाजी है दुनिया मेरे आगे, होता है तमाशा मेरे आगे। गालिब की नजर में पूरी दुनिया बच्चों के खेल की तरह है, दिन रात इस गैर संजीदा हरकतों में मशगूल रहती है। उसके अय्याम में कोई दकीक रास पिन्हा नहीं है। गालिब किसी सिले के काम करने के कायल नहीं, हत्ता कि नेकी की सवाब की खातिर नहीं। जानता हूँ सवाब इताअत व ज़ुहद, फिर तबीयत इधर नहीं आती। कहना कि मैं अपनी तबीयत से मजबूर हूँ कि किसी इनाम की खातिर कोई नेक काम किया जाए। नेकी बगैर अजर व इनाम होनी चाहिए। हम मुवहिद हैं, हम मुवहिद हैं। हमारा देश करके रसूम मिल्लतें जब बिट गई, अफजाई माँ हो गई है परे सफद इदराक से अपना मसजूद। किबला को अहले किबला, अहले किबला को अहले नजर किबला माँ कहते हैं। जो देखा या सुना जा सके वो आते अक्ल में आ सकता है। हम पर जो रास लिखा है वो दायरे अक्ल यानी सफद और इदराक से परे है। अक्ल मंजिल की रुख का तयन कर सकती है, मंजिल की तरफ ले नहीं जा सकती। इसलिए समझदार लोग किबला को किबला नुमा कहते हैं। देख कर पर्दे गर्दे दामन अफसानी मुझे कर गई वाबस्ता तन कर गई वाबस्ता तन मेरी बुनियादी मुझे। हम खामोशी से एक एक करके मुरवजा रसूमात वाक़दार के लबादे उतार रहे हैं। तातो ज़ोहद हमने छोड़ा, वादा खाली हमने इख्तियार की, रोजा हम नहीं रखते, जन्नत को खुश रखने का ख्याल हम समझते हैं। उनके अक़दार के पैरोकारों की नजर में हम काबिल मलामत बन गए। हमारा वजूद पूरिया हो गया, दुनियावी अक़दार से दूरी हमारी शख्सियत बन गई। गोया हर तरह से हम बदनाम हो गए। जिन लोगों को है मुझसे अदावत गहरी, कहते हैं मुझे वो राबते और दहरी। दहरी क्यों कहो जो कि होवे सूफी, शिये क्यों कहो जो हो मावरन नहरी। हम वेदत को तस्लीम करें, वो सूफी है, दहरिया कैसे हो सकता है? मेरा ताल्लुक तो मावरन नहर से। मेरे कलाम सच्चाई के शरारे निकलते हैं। आतिश बयान हूँ ना कि आतिश परस्त हूँ। मेरे कलाम की आतिश फसानी देखकर लोग मुझे आतिश परस्त गर्दानते हैं। आतिश परस्त कहते हैं अहले जहां मुझे, आतिश परस्त कहते हैं अहले जहां मुझे। सर गर में ना रहाए शरर बार देखकर। गालिब का कहना है कि मुझे बुरे काम करने वालों से शिकायत नहीं है, शिकायत उनसे है जो बुरे कामों का मवाद फराहम करते हैं, गलत कामों को सही कामों की तरह पेश करते हैं। और बिला वजह में लोग मेरे दुश्मन हो गए। हम कहाँ के दाना थे, किस हुनर में यकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमान। हमने दाना होने का दावा नहीं किया, हमने सलाहियत और इल्म की बुनियाद पर कोई मफाद नहीं हासिल किया, किसी को कुर्सी नहीं छीनी, किसी का हक नहीं मारा, किसी हुनर में हमने महारत पैदा नहीं की और न ही हुनरबंदी के मुकाबले में आए। फिर क्यों लोग मुखालिफ हो गए, इसकी वजह वो खुद ही बताते हैं। हसद, अब ये इंफरादी जो तुम्हारी इज्तिमाई मैंने कहा असलियत और इंफरादी तौर पर ये जो गालिब कहे हसद सजाए कमाले सुखन है क्या कीजिए। हसद सजाए कमाले सुखन है क्या कीजिए। सितम बहाए मताए हुनर है क्या कहिए। में क्या किया जाए? जो शख्स सुखन में कमाल हासिल कर लेता है लोग उससे हसद करने लगते हैं। इसी तरह जो शख्स किसी चीज में महारत हासिल कर लेता है लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। हुनर की दौलत हासिल करो और सितम उठाने के लिए तैयार हो। हसद से दिल अगर अफसुदा है घर में तमाशा हो। गर चश्मे तंग शायद कसरत नजारा से वाह हो। दूसरों की कामयाबी तरक्की देखकर हसद करने वालों को गालिब मशवरा देते हैं कि वो अपनी निगाह का दायरा वसी करें। महदूद दुनिया का नजारा करने वाला तंग नजर होता है, यही हाल हासिब का होता है।
کہ اپنی کھول سے نکل کر دنیا دیکھے گا تو اس کا حسد ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں ہمیں اپنے راہ سے ہٹانے والے بہت ہیں، ہم کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ قتل کر دیا جائے گا، لالچ دیا جاتا ہے، لوگ طرح طرح کے بھیس بدل کر آتے ہیں، مگر ہم انہیں پہچانتے ہیں۔ جب لاش سے ڈرتے ہیں نہ باعث سے جھگڑتے ہیں، جب لاش سے ڈرتے ہیں نہ باعث سے جھگڑتے ہیں، ہم سمجھے ہوئے ہیں اسے جس فیس میں جو آئے۔ آگے کہتے دیکھیے غالب سے گر بجھا کوئی ہے ولی پوشیدہ اور کافر کھلا۔ ہم بتا دیں کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، باہر سے کافر مگر اندر سے ہم ولی ہیں۔ تو داری ان کے اندر کود کود کر کھڑی ہے۔ دہلی کالج کے واقعے میں آپ نے ملاحظہ کیا، بندگی میں بھی وہ آزاد خوب، آزاد و خود بھی، بندگی میں بھی وہ آزاد وہ خود بھی ہے کہ ہم الٹے پھرائے درے کا باغر نہ ہوا، یعنی ہم اپنی منزل کی جانب قطر نہیں جائیں گے جہاں ہماری آزادی یا خودداری کو ٹھیس پہنچنے کا احتمال ہو، یہاں تک کہ جس کی غلامی یا پرستش کریں اس کا در ہمارے لیے کھلا ہونا چاہیے۔ ہم کسی در پر دستک دینا، ہمیں کسی در پر دستک دینا منظور نہیں، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کوئی میسر نہیں انسان ہونا۔ آدمی اور انسان علیحدہ ہے، آدمی ہر کوئی ہے مگر ضروری نہیں اس میں انسانیت ہو۔ آدمی تو انسان بننا آسان کام نہیں، مستقبل پر ان کی گہری نظر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نئے افکار اور نئے شخصیت سے لیس ہونے کا سودا نقد ہوتا ہے۔ جب تک پرانے عقائد اور اقدار ترک نہ کیے جائیں گے، نئے عقائد اور اقدار ان کی جگہ نہیں لے سکتے۔ دین و دین نقلا ساقی سے گر سودا کیا چاہیے، اس بازار میں ساگر متائے دستے گرداں ہے۔ کھاپا کفن نے داغے غرور برہنگی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا۔ دین والے اور دنیا والے کوئی بھی مجھ سے متفق نہیں، میں ان کے کسی معیار پر پورا نہیں اترا۔ انہوں نے مجھے ہر طرح کی برائی دیکھی، مجھے کسی لحاظ سے بھی اچھا نہیں جانا، مجھ میں ہر طرح کے عیوب نکالے۔ ان کے لیے میں ننگے وجود تھا، انسانیت پر ایک کلنک تھا۔ مرنے کے بعد جب مجھے کفن پہنایا گیا تو ان کے لیے باعث اطمینان ہوا کہ کم از کم میری جسمانی برہنگی چھپ گئی۔ ہر بڑے شاعر کے عالمی اور آفاقی نقطۂ نظر ہوتا ہے جو تقلید نہیں کرتے بلکہ تعمیرات کی تلاش کرتے ہیں۔ فلابیئر کا کہنا ہے کہ شاعر کی عظمت اس میں نہیں ہے کہ اس نے زندگی کے کتنے مسائل حل کیے بلکہ کتنے سوالات قائم کیے، جو میں کہہ رہا ہوں، اور مسلمہ عقائد پر شکوک و شبہات کی نظر ڈالی۔ مرزا غالب کی شاعرانہ عظمت اس لیے ہے کہ اس اصول پر وہ پورے اترتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے جس کی روشنی میں ان کے تصور حیات کو آسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کے تصورات انسانی اقدار کی نظر نہیں پہنچاتی بلکہ ان کی عظمت کو عیاں کرتے ہیں۔ میں نے یہ شعر پڑھا تھا، ان کے توحیدی وجود نے رنگ، نسل اور ملت کی تفریق کو ختم کر دیا۔ جب بھی تجھ میں نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیوں ہے؟ سبز و گل کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند؟ گستاخ یہ فرشتہ ہماری جناب میں۔ یہ سوالات غالب کے ذہن میں کیوں پیدا ہوئے؟ دراصل غالب کے زمانے کی صورتحال نے سوالات کو جنم دیا۔ انسانی وجود کا رشتہ تاریخ اور وقت ہمیشہ رہتا ہے۔ جو عقل مند اور ذہین ہوتا ہے اس کا تاریخی شعور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ پورے ماضی کو حال میں سمیٹتا ہوا مستقبل پر نگاہ ڈالتا ہے۔ وہ اپنے حد سے آگے دیکھتا ہے۔ چنانچہ سر سید کی تدوین آئین اکبری کو اچھا نہیں سمجھتے۔ سچائی اور راست بازی کو گفتار، کردار اور افکار تمام میں راہ دینی چاہیے۔ غالب اس قول پر پورے اترے کہ نہیں، ان کو محاسبہ کرنا مقصود نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کسی عیب کو چھپایا نہیں۔ ہوگا کوئی ایسا کہ غالب کو نہ جانے، شاعر کو اچھا ہے، بدنام بہت ہے۔ اپنی ہی نسبت زندگی کے جھوٹ اور مکر و فریب کا پردہ چاک کرنا بڑی بات ہے۔ اس فن میں غالب کا کوئی جواب نہیں۔ ان کی شخصیت بڑی ہمگیر اور پہلودار تھی۔ ان کے آئینہ میں پوری فطرت انسانی جلوہ گر تھی۔ میں اپنی کمزوری اور بلندیوں کو انہوں نے بہت سے خود توڑے، زندگی کے بارے میں نئے سوالات اٹھائے، پرانے اعتقادات کو چیلنج کیا۔ عہد غالب میں فکر کی آزادی مفقود تھی، سوال کرنے کی روش ناپسندیدہ تھی، روایات کو من و عن قبول کیا جا رہا تھا بلکہ انہیں مقدس تصور کیا جاتا تھا۔ اجتماعی شعور اور سماجی نظام دونوں جنون کا شکار تھے۔ جس نئے عہد کے آثار نمایاں ہو رہے تھے اس کی جانب کسی کی توجہ نہ تھی۔ اگر کسی کی نظر چلی بھی جاتی تو وہ قابل نفرت سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ بس جو جیسا تھا اسی میں مگن، پورے معاشرے میں یکسانیت پائی جاتی تھی، مگر غالب نے یکسانیت اور زندگی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فکری سطح پر تغیر و تبدیلی چاہتے تھے۔ اس معاشرے کی ماضی پرستی کی بجائے ان کی نگاہیں مستقبل پر لگی ہوئی تھی۔ احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں اقتباس، غالب مسلمانہ نے بر صغیر کی تاریخ کے دو راہ پر کھڑا ہے، مگر تہذیبی سفر کی اس مرحلے سے وہ حیران و سراسیمہ نہیں ہے۔ اگر اس کا سرمایہ صرف جذبہ وجدان ہوتے تو ممکن ہے وہ ہتھیار ڈال دیتا، مگر وہ اردو اور فارسی کا پہلا شاعر تھا جس نے عقل و دانش کی نفی نہیں کی۔ جبکہ کوئی شاعر یہ کہے کہ چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا، اس کے فن کو شکست نہیں ہو سکتی۔ یہ چشم کا واہ ہونا اردو شاعری کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ غالب سے پہلے تو ہماری شاعری پر اس چنوں کا پرچم لہراتا تھا جو خواب دیکھنے کی حد تک یقیناً جائز بلکہ ضروری ہے، مگر جس نے ہمارے یہاں آخرت کی دشمنی کی،
सूरत इख्तियार कर ली थी गालिब ने, न सिर्फ रब की परचम कुशाई की बल्कि अपने फन के बल पर एक उसे हुस्न से आरास्ता किया। और उर्दू का पहला खिरदमंद साहिब दानिश और ताक़ुल पसंद शायर करार पाया। गालिब से कब उर्दू शायरी में अक्ल का मकाम की शुरू हासिल की। जुनून इसी इश्क की जुबाना सूरत मीर कहते हैं, आपकी जुनून में फासला शायद न कुछ रहे, दामन की छाप और गिरबान की छाप में जिंदगी के तमाम मसाइल का हल इसी इश्क में तलाश किया जाता है। मगर मजाजियों कहती कि उसका उरूज फनायत थी। जाहिर है कि मसाइल का फना हो जाना भी यकीनी था। इशरत खतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। तस्वुर इश्क के हवाले से ताल्लुक तो गवारा है चाहिए, ये ताल्लुक इंसान से या खुदा से, मगर खुद सुपुर्दगी जात के वो कायल नहीं थे। तहफ़्फ़ुज़ जात का एहसास गालिब के यहाँ कवि है। वो इश्क को एक कलीद नहीं समझते कि तमाम मसाइल हल हो जाए। वो अक्ल को ये मर्तबा देना चाहते हैं, मगर अक्ल की नाकामी का तजुर्बा भी था जिसने उनकी शायरी में वजूदी तर्ज के एहसास पैदा कर दिए। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। गुलबुल के कारवार में है खंदकाए गुल कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। रवायती तस्वुर इश्क से गालिब अपने आप को मांग नहीं कर सके। गालिब ने कदीम की तनसीख की खास अहमियत थी। गालिब तगय्युर पर ईमान रखते हैं। कायनात में जारी तगय्युर के अमल को गालिब ने आराइशे जमाल जैसे खूबसूरत तरकीब से पेश किया। आराइशे जमाल से फारिग नहीं रूस, पेशे नजर है आईने दाइम नकाब में। तगय्युर सिर्फ कायनाती में नहीं बल्कि फर्द की जात में भी ये अमल जारी है। कदरें तब्दील हो रही है, रिश्तों का कदीम तस्वुर बिखर रहा है, खानदान टूट रहे हैं। अर्श फर्द जिंदगी अक़दार अक़ीदे तसव्वुरात रिश्ते जज्बे एहसासात अफ़कार तमाम चीजें तगय्युर पज़ूर है। वो फरार वो साल कहाँ, वो शब रोज वो माह साल कहाँ, फुर्सते कारोबार इश्क से ज़ौक़े नज़ारे जमाल कहाँ। फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ मगर कहाँ, और ये बवाल कहाँ। और साथ छोड़ता हूँ। गालिब इस बात पर हैरान है कि लोग इंसानी जिंदगी गुजारने में किस तरह रज़ामंद थे, जबकि चहल पहल दुनिया चाहती है, हंगामा चाहते हैं। ये हंगामा खुशी के सबब न से गम के बाइस तो मज़ा था नहीं। एक हंगामे में मौकूफ है घर की रौनक, न है गम ही सही न में शादी न सही। जिंदगी में गालिब को गम को गालिब ने असासी हैसियत दी है। कैदे हयात बंद गम असल में दोनों एक है। मौत से पहले आदमी गम से नजात भाई क्यों। गालिब ने अपनी आंसू में जीना सीख लिया था, मुश्किलों में आसानी का पहले तलाश कर लिया था। रंज से उगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी आसान हो गई। गालिब का ज़हन बदलती दुनिया के नक्शे को देख रहा था, इसलिए उनकी शायरी जिंदगी की जिन अक़दार का इजहार करती है वो अपने हद से मुताल्लिक़ नहीं थी। चुनांचे अपने हद में गालिब की शायरी की मानवियत नहीं उभर सके और गालिब को उसकी परवाह भी नहीं थी। न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, गर्व नहीं है मेरे अशार में मानी न सही। वो जानते थे कि जो तगय्युरात और तब्दीली उन्हें शेर कहने की तरफ माइल कर रही है वो उनके अपने अहद की नहीं है बल्कि मुस्तक़बिल में ये वज़ीर होंगे। जैसे आज गालिब के 150 साल भी आज देखिए उनके ऊपर कितना काम कर रहे हैं। वो खुद समझते हैं कि हाल नहीं बल्कि मुस्तक़बिल के शायर हैं। वो गर्मी निशात तस्वुर से नग़्मा संज मैं अंदली में गुलशन नाअफ़रीदा हूँ। ये अंदली में गुलशन नाअफ़रीदा का कतई इज़हार तब्दीलियों पर एतक़ाद के बगैर मुमकिन नहीं था। गालिब की खुदागाही नज़रिए ज़मान व मकान कायनाती शऊर ने उनकी तख़लीक़ी शख़्सियत की तामीर के लिए वो मुस्तहकम एहसास फराहम कर दी जो हम आफाकी और तादेर जिंदा रहने वाली शायरी के लिए लाजिम है। गालिब अपने माजी से आगाह थे, हाल से भी। गालिब की शेर पर मैं अपनी इस बात को खत्म करता हूँ। आज़ाद रहूं और मेरा मसलक सुलह हूँ, आज़ाद रहूं और मेरा मसलक सुलह हूँ। हर किस कभी किसी से अदावत नहीं रही है। बहुत बहुत हमारी रियासत से बहुत ही जवानसाल अजीब मौके का आपके पेश करना चाहूँगा। आपने बहुत ही नाउमरी में उर्दू अदब में अदब की मुख्तलिफ असनाफ के हवाले से अपनी पहचान बनाई है। किताबों, अफसाने, फिक्शन की तनकीद के हवाले से और मरहूम अदीबों के इंटरव्यूज के हवाले से और खुद अपने वालिद मोहतरम पर जिस तरह का ये काम उन्होंने किया है और कर रहे हैं उस हवाले से भी अदबी हल्कों में जाने जाते हैं। और इनको साहित्य अकेडमी की जानिब से नौजवान अदीब का अवार्ड भी दिया जा चुका है। ये मेरे हमवतन हैं, बरगाह से तशरीफ लाए हैं और जो आज हमारी रियासत की नई नस्ल है उसमें जो अहम नाम है, 3 अहम नाम, डॉक्टर फौजल परवीन, अकल नक्काश और गज़नफर अकबर, इन तीनों का ताल्लुक इत्तेफाक से बरगाह से है। मैं जवान साल
ڈاکٹر حسن سے اقبال سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا نکالہ پیش کریں۔ میرے مضمون کا عنوان ہے غالب اور عالمی انسانی خطرے۔ غالب رنگین نوائی کی شاعرانہ شخصیت تھے۔ ان کی شعری عظمت، مفکرانہ حکمت اور ابلاغی جہد صد رنگ گلستہ میں دست فیضی کا عمل ہے۔ غالب کا تخلیقی باطن ہر رنگ میں بہار کے اس بات کی پیکر تصویر ہے۔ وہ عجب آزاد مرد تھے جنہوں نے تصویر کے پردے میں اوراق لخت دل کو اشتیاق انگیز کیا۔ غالب نے شاعری میں مختلف عالمی انسانی خطروں سے سحرکاری کی تھی جو شعلہ سامانی کی صورت میں روشن ہے۔ ان کی شعری گہرائی اور ترجمانی نے انسان کے پسندیدہ اور شریفانہ عمل اخلاق کو بطریق احسن نمایاں کیا۔ اخلاق گویا ایک معاشرہ ہے۔ اخلاق معاشرے کے خرینوں میں سب سے اولین خرینہ ہے۔ یہ انسان کے کسی ایک خاص حصے کی نمائندگی ہی نہیں کرتا بلکہ سراپا زندگی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو صالح زندگی کے روشن راہوں کی طرف راغب کرے۔ اخلاق کا اصل باطن کا آئینہ دار ہوتا ہے اور اس کا اصول ہی حیات انسانی کا اصل مقصد اور نظم العین ہے۔ غالب نے اخلاقی خطروں اور تعلیمات کو اپنی شعری تخلیق کا موضوع بنایا۔ اخلاقی خطرے جس کا اثر چشمہ مذہب ہے اور انسانیت اس کا زیور۔ اخلاق رفاقت، دوستی اور ہمدردی اخلاقی کے ترجمان ہے۔ غالب کے ہاں اخلاقی تصورات کی تصویر ساتھی ملاحظہ کیجیے کہ بیگانگی خلق سے بے دل نہ ہو غالب، کوئی نہیں تیرا کوئی جان خدا ہے۔ خطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے، کام اچھا ہے وہ جس کا یہ محال اچھا ہے۔ جو مدعی بنیے اس کے نہ مدعی بنیے، جو نا سزا کہیے اس کو نا سزا کہیے۔ کلام غالب روحانی ارتفاع اور خطروں سے عبارت ہے۔ روحانیت کا سارا روح انسان میں مکارم اخلاق اور عرفانی اکتساب کا حاصل ہے۔ بے چین روح کی پناہ اور بے سکون کا سہارا روحانی خطرے ہیں۔ روحانیت کی اشاعت اور توسیع کرنے والوں کے ہاں کوئی حجبیت نہیں۔ وہ حرم اور غیر کی تعریف ہی نہیں کرتے بلکہ وہ تمام انسانوں سے یکساں محبت کرتے ہیں کیونکہ انہیں ہر جگہ خدا کا ہی جلوہ نظر آتا ہے۔ غالب کے کلام میں جا بجا روحانی تعلیمات اور خطروں کے چراغ رکھے ہیں۔ ایسا احساس جاگتا ہے کہ ان چراغوں کو روشن کرنے کے لیے غالب نے اپنا دل نچوڑ کیا ہے۔ غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود ہیں خواب میں، ہم جو جاگے ہیں خواب میں۔ ہر ایک شے میں تو ہے اور تجھی سے تو کوئی شے نہیں ہے۔ گرنی تھی ہم پہ برف تجلی نہ دور پر، دیتے ہیں بادہ ظرف خدا اور دیکھ کر، جبکہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود، پھر ہنگامہ خدا کیا ہے۔ محرم نہیں ہے تو ہی ہے نواں آئے راز کا، یہ جاں وہ ورنہ حجاب ہے پردہ احساس کا۔ غالب کے شعری باطن میں مساوات کی عالمگیر آفاقی غالب کے شعری باطن میں مساوات کی عالمگیر آفاقی تصور کی کار فرمائی کی ہے۔ مساوات انسانی خطروں کی نجات دہندہ کے طور پر متعارف کرواتی ہے اور یہ فرض کے درجے میں مطلوب شے بھی ہے کہ اس کے بغیر دنیا انسانی کا نظم و نسق چلا پانا ناممکن ہے۔ خاطر نشان رہے کہ مساوات کا مطلب کلی یکسانیت نہیں، مساوات کا مطلب ضرورت کو ظاہر کرنا اور مقام محل کو جاننا ہے۔ مساوات انسانی خطروں میں کہیں کامل صورت میں ہے، کہیں ادنا صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ غالب کے ہاں مساوات کی نئی وجدانی یا فکری صبح طلوع ہوتی ہے۔ بخشی ہے جلوائے گل ذوق تماشا غالب، چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہونا، نہیں بہار کو فرصت نہ ہو بہار کو ہے، تراوت چمن وہ خوب روا کہے نہ جانے۔ غالب کے شعری رویے میں رواداری کی پرچھائیاں ہوتی ہیں۔ شاعر کے نزدیک دوسروں کے جذبات و احساسات کی رعایت اور دوسرے مذاہب کا احترام کرنا رواداری ہے۔ رواداری عہد حاضر میں عالمی انسانی خطروں میں اعلیٰ ترین قدر ہے۔ رواداری باہمی محبت، صلہ رحمی، ہمدردی اور غمخواری کے اشتراک سے وجود رکھتی ہے۔ غالب کے ہاں عالمی مذاہب کے درمیان باہم فرزگاری کی حیثیت و کیفیات کی آئینہ داری ان اشعار میں دیکھیے۔ وارستگی بہانہ بیگانگی نہیں، اپنی سے کھا کر غیر سے وحشت ہی نہ ہو۔ آزاد روم اور میرا مسلک ہے سلح کل، ہرگز کبھی کسی سے عداوت نہیں ہے مجھے، بس کے دشوار ہے کام کا آسان ہونا۔
आदमी की मुअस्सर इंसान। गालिब के शेरी शौर में अमन व शांति का तस्वुर गहरा है। ये तस्वुर आलमी कदरों में इंफरादी भी और इज्तिमाई है। अमन व शांति की अखलाकी इमेजरी में इस मॉडल की निहायत होती और गिरामाया किया है। आलमी सतह पर इंसान अमन व शांति और खुशहाली का मुतलाशी है। अमन व शांति और एहतराम आदमियत बाहिमी रब्त व ताल्लुक से ही पैदा होती है। अफ्ताए आलम में अखलाक और अखलाक से अमन व शांति पैदा होती नजर आती है। अहद गालिब से अहद रवां तक अमन पसंदी और अमन परवरी को आलमी इंसानी खतरों का मानदार गर्दाना गया है। गालिब अमन शांति के हकीक अलमबरदार की चंद मिसालें देखिए दौड़े है फिर हर एक लाला पर ख्याल गुलिस्तान निगाह का नामा किए हुए नवीद अमन है बेदाद दोस्त जाके लिए रही न दर्द सितम को आसमां के लिए अर्ज में का जरा दिल व दिल है आईना टूटी गुस्सा जहद से मुकाबिल है आईना। आलमी इंसानी खतरों में हक गोई और हक शनासी को गालिब में बेबाकी और दिलेरी से पेश किया है। गालिब माशरे की रुके रहो के नवाज थे। इन्होंने हिकमत व तदब्बुर को अशार में शेरी इदराक के साथ जाहिर किया और हक शनासी और हक गोई के तसव्वुर की खूबी से शेर का पैराहन अता किया है। चाहे वो गुरूर हुस्न से बेगाना है वफा हरचंद उसके पास एक शनास है। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे नाहक आदमी को हमारा तहरीर भी था। गालिब ने शेरी तखलीक में ईसार सच्चाई इंसाफ नेकी तवाज़ु हमदर्दी और खिदमत खल्क़ जैसे मौज़ूआत की परवरिश बड़े ही चाव से की थी। ईसार फयाजी का सबसे बड़ा और सबसे आखिरी दर्जा है इंसानी जिंदगी में इंसाफ की पासदारी और नेकी का इंतसार सलाह और अमल खैर पर सच्चाई तवाज़ु और खिदमत खल्क़ इंफरादी और इज्तिमाई इंसानी जिंदगी के गैर मामूली सिफत हैं। गालिब इस तरह शेर कहते हैं कभी नेकी में इसके जी में गर आ जाए है मुझसे करके अपनी याद शर्माए जाए है मुझसे। एक नूर बहार नाज को ताका किए है फिर निगाह चेहरा फरोग मैं से गुलिस्तान किए हुए। गालिब की शेरी शख्सियत ने इंसानी खतरों को जिंदगी के मुख्तलिफ सरचश्मों से फैज़ किया है। इनकी तख्लीकी फिक्र कारक जिंदगी अफरोज बसीरत की हैसियत इख्तियार कर चुका है। गालिब की सुखनवरी इंसानी खतरों को तकलीफी तोसी अदा करने की इंतहा है। इनका शेरी मुशाहिदा गहरा था जिसके बाइस इनके कश्ती इम्कान दीदा बिना से अपनी जिंदगी को तामील ख्याल किया था। लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती। लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती। जबन गंगार आईना वादाए भारी का कौन हो रहा है और 5 मिनट है। हम 1:30 बजे से पहले 1:25 तक अपना ये दूसरा इजलास है इसको खत्म कर लेंगे। हमारी तीसरी खाला निगार है डॉक्टर जुबैदा बेगम। डॉक्टर जुबैदा बेगम का ताल्लुक 1920 से रहा है। वो प्रोफेसर की हैसियत से हाल ही में रिटायर्ड हुई हैं। अदबी और उर्दू घराने से आपका ताल्लुक रहा है और मुख्तलिफ अदबी मौज़ूआत पर वो अदबी और तनक़ीदी मज़ामीन लिखती रही हैं। अंजुमन है महफिल निसा उसकी नायब सदर हैं। ज़ाहिर है कि ये सब डॉक्टर कौसर परवीन हों या जुबैदा बेगम हों या सदिया जहाँ हों या फजिया सुल्ताना हों, ये सब डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ की निगरानी में, मैं महनूर ज़मानी साहिबा का नाम भूल रहा हूँ, तो ये सब लोग ये भी नायब सदर हैं। ये सब लोग मिलके उर्दू के फरोग के लिए हमारी रियासत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर जुबैदा बेगम से दरख्वास्त करता हूँ कि अपना मुकाबला गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के अरबाब मोहल्ला और महमूद अयाज ट्रस्ट के सदर, नायब सदर और इस इजलास की सदारत कर रहे हैं जनाब मिलनसार सफदर रहमत, ख़वातीन व हज़रात, आज के इस पुरमत सेमिनार का उन्वान है गालिब और आलमी इंसानी खतरे। हयात इंसानी खुदा की अजीम नेमत व अमानत है और इंसानी जिंदगी की मेराज ऐसे मुआशरे की तश्कील है जिसमें रवादारी, आली हौसलगी, खैर सगाली, ईसार और कुर्बानी जैसी और तमाम दूसरी इंसानी अक़दार नशो नुमा पाए।
जो बनी हुए इंसान की तरक्की और बहबूद के लिए नागुज़ीर ख्याल की जाती है। दरअसल इन खतरों के ज़ेर असर तरबियत याफ्ता अफराद जिनकी अक्लो खिरद में कुव्वत, इरादों में मजबूती, हौसलों में बुलंदी, कुरैश को सुकून और तमानियत का मिस्कन बना सकते हैं, और इन अफराद से ऐसी कौमें बनती हैं जो आलम में अपना मकाम पैदा करती हैं और अपनी कदर कीमत और अजमत के निशान छोड़ जाती हैं। आलमी इंसानी खतरे वो पाइंदा हकीकत हैं जिन्होंने सदियों की मुसाफिर तय करते हुए पुरपेच और पुरखतर रास्तों से गुजरकर हम तक पहुंची हैं। हमारे इंसानी माशरे में इनकी अहमियत संग मील की सी है, जिनकी पासदारी हमें अरफा जिंदगी तक रहनुमाई करती है। दुनिया आज एक हिजान आमेज कर्ब से गुजर रही है। इंसानी माशरा तबाही के दहाने पर शश कर खड़ा हुआ है। मादा परस्त रुझानात इंसानी खतरों से मुतसादिम हैं। असले हाजिर की माशरत पर ये हमें बावर करा रही है कि तसादिमात ने अक़वाम आलम की सेहत और सलामती पर कई ज़रबें भी लगाई हैं और उसकी सेहत और सलामती को एक हद तक मस्त कर दिया है। सारफियत की अंधी होड़ ने कौमों मुल्कों को नाक़िबत अंदेशी की गहरी खाइयों में ढकेलने का पूरा जतन किया है। दूसरी जानिब एक बेहिस और बेज़मीर मुआशरा भी वजूद में आ चुका है, जिसके निशाने पर आलमी इंसानी खतरे हैं। तहजीब, शाइस्तगी, अदब, फलसफा, अवाम, भाईचारा, अखलाक, शराफत वगैरह के सदियों के समरावर इंसानी खतरों के बुलंदो बाला ऐवान आज लफ्ज़ बुलंदाम है। इन हालात में आलमी इंसानी खतरों की कीमत का तयन करना और इसरार पर तवज्जो वक्त की बहुत अहम जरूरत भी है। आलम इंसानियत पर बात मुखालिफ की पुरजोर आंधियों की रोकथाम भी जरूरी है। बहुत से गोशों से अफराद और जमातें अपने मुफादात और मसलहतों के पेश नजर आलमी खतरों की जरूरत और अहमियत पर भी सवालात उठा रही हैं कि इन फरसुदा खतरों पर आखिर जोर क्यों दिया जाए। लोग उन्हीं वाज़ेह तौर पर मुस्तरद न करते हुए अपने आमाल और लफ्जी दावों के मुनाफी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। दरअसल इंसानी जिंदगी की हकीकी मीरास दौलत और सरवत और जहांबानी नहीं, अफराद की हदशनासी, एहसास और बाहमी सुलह-जोई है। जिस समाज में अफराद की तरबियत के साजो सामान और माहौल की फिक्र होती है, वही इंसानी तरक्की मुमकिन हो सकती है। हयात इंसानी की लाफानी हकीकत को मौलाना रूम ने इस बला की सादगी के साथ अदा किया है। देखिए, तू बराए फसी गर्दन आमदी, मैं बराए फसी गर्दन आमदी। ऐ इंसान, तू दुनिया में मेल मोहब्बत बढ़ाने के लिए आया है, फूट डालने के लिए नहीं। आज आलमी इंसानी खतरों पर इसरार इसलिए भी नागुज़ीर है कि हमारी नौजवान नस्लें अपनी शख्सियत के तारुफ़ में इन खतरों को पैवस्त कर लें, ताकि कमजोरियों और माहौल की मजबूरियों से बुलंद होकर जिंदगी की शाहराहों पर साबित कदमी के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। इसलिए कि जमाने की गोद में बड़ी खौफनाक आंधियां बरगश पा रही हैं। हर किसी को चाहिए कि इन आंधियों की यौरिश में आलमी खतरों का जरा बख्तर जरूर पहने। आलमी इंसानी खतरों का उम्मीद अफ़ज़ा पैगाम हमारे लिए उम्मीद की एक रोशन किरण भी है। ये पैगाम जिसकी असास मोहब्बत, रवादारी, शराफत, इंसानियत, दोस्ती, भाईचारे और सुलह आतिशी है। गालिब 20वीं सदी का वो दुर्रे नायाब है जिसका ज़हूर उस वक्त हुआ जब हिंदुस्तान में मुगलों की सतवत और जलाल का आफताब ग़ुरूब होने को था। गोया
गुजरे हुए तूफान के आखिरी बादल सरजमीन दिल्ली पर इल्म और फजल का खून बरसा रहे थे। मजहबियत, अदबियत, हर्ज, इल्म और इरफान के हर मैदान में बहार ही बहार थी। बिलखुसूस उर्दू शायरी का अदब अपने इस नहार पर था और गालिब उसका समरावर दरख्त थे। रशीद अहमद सिद्दीकी ने बजा तौर पर मगहिया सल्तनत के 3 अतिया जात में उर्दू और ताजमहल के साथ गालिब का नाम भी लिया है। गालिब की हिमागिरी और आफाकियत का राज उनकी शख्सियत में पिन्हा है, जिसमें बशरी कमजोरियां भी पाए जाने के बावजूद कोई झोल हमें इसलिए नजर नहीं आता कि गालिब आप अपना मुहासिमा करने का हौसला रखते हैं और ज़र्फ भी मौजूद था। दूसरी अहम बात यह है कि गालिब के पास कमजोरियां उस माशरे की खामियां थी जिसके वो नुमाइंदा थे, जिनकी वजाहत डॉक्टर मोहम्मद हसन के तज्जियाती मुताले के इस इक़्तिबास से बखूबी हो जाती है। मुलाहजा कीजिए, ये सही है कि इस रोशन ख्याली और बसीरत अफरोज समाजी शऊर के बावजूद गालिब ने कदीम तहजीबी अक़दार से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। मगहिया तहजीब की इस टिमटिमाती शमे की रोशनी में भी उन्हें इस अज़ीमुश्शान तहजीब की हर झलक हसीन नजर आती है। उनके रुमान और उनकी कमजोरियां उस जागीरदारी समाज में पलकर जवान होने वाले अमीरजादे के अरमान और कमजोरियां थी। दरबार में कुर्सी ना मिले, खिताबात और अल्काब नाम का जुज़ बने, पेंशन की बाजियाब हो, हम चश्मों में इज्जत हासिल हो, हवादार से उतरे तो पेशवाई को कोई ना कोई हाजिर हो, मगर इसके बावजूद उन्होंने अपना रिश्ता उन तबकों से वाबस्ता कर रखा था जो नई तहजीब की आमद की रफीक भी थे। इस एतबार से वो सर सैयद के पेशगो थे जिन्होंने तहजीबुल अखलाक और एमएओ कॉलेज के जरिए हुकूमत के तने मुर्दा में नई रूह फूंकी। अमीरजादे की हैसियत से उन्हें दुख था कि ऐसी हसीन तहजीब मिट रही है, मगर इस तबके से रिश्ता उसवार रखने की बिना पर जानते थे कि तारीख का फैसला है और उसे नागुज़ीर जानने के बावजूद मुस्तक़बिल के ऐसे ख्वाब देखने से बाज नहीं आए जिनकी ताबीर में शायद उन जैसे अमीरजादों का कोई हिस्सा नहीं था। गालिब की शख्सियत के तारों इन मखसूस सवानी हालात से तैयार होते हैं जिनका ताल्लुक आगरे और दिल्ली की जिंदगी से है। उसकी तफसीलात दस्तयाब नहीं, बजुज़ चंद मकतूबात में जहां गालिब ने कुछ सवानी हालात का जिक्र किया है, या फिर महर निमरोज का वो दीवाचा जिसमें उन्होंने खुसूसियत के साथ दरबारी तमद्दुन के तकाज़ों के पेश नजर अपने आबा व अजदाद बल्कि असलाफ के कारनामों की गुंजाइश निकाल ली है। यही चंद मकसद हैं जिनसे हाली से लेकर बाद के तमाम सवाने निगार गालिब के हालात जिंदगी कलम बंद करते आ रहे हैं। गालिब को अपने तुर्क ऐबक होने पर आखिर दम तक फख्र रहा, जिसका इजहार उन्होंने अपनी फारसी और उर्दू कलाम में झांका किया है। नवाब अनवारुद्दौला सादुद्दीन खान शफक के नाम एक मकसूद में इस अमर का दावा करते हैं, मेरा हमकौम सरासर हिंद में नहीं। अपने दौर के मुरव्विजा उलूम के मुकाबले में जो खुसूसियत गालिब को मुआसरीन में मुमताज और मुनफरिद मकाम अदा करती है वो फारसी ज़बान व अदब से उनका वालहाना शगफ है, मगर उन्हें उर्दू के मुंतखब कलाम की बदौलत शोहरत दवाम मिली है। गालिब को हमेशा फारसी कलाम पर नाज रहा, जिसे वो नक्श-ए रंग कहा करते थे। गालिब फारसी नस्ल की तरह फारसी नस्ल पर भी महारत रखते थे। वहाँ भी उन्होंने अपने खास असलूब की बिना पर शोहरत पाई। गालिब दरअसल उस दिल्ली के नुमाइंदे थे जबकि दिल्ली के तमद्दुनी और तहजीबी अक़दार पूरे हिंदुस्तान बल्कि एशियाई ममालिक में बाइस इफ्तिखार माने जाते थे। इससे बढ़कर ये नुक्ता भी काबिल गौर है कि बाज़ यूरोपीय कौमें भी इस पुरशिकवा तहजीबी अक़दार की दिल फरेबी से इस कदर मुतासिर हुई कि अपनी दिलचस्पी दिल्ली की ज़बान और उसके मजलिसी आदाब के मुताले में मसरूफ थी। दर हकीकत उस दौर के माशरे में मजलिसी आदाब तर्ज़े
गुफ्तगू के ऐसे उसूल मुदव्विर थे जिन पर कार्बन होने को तबक़े खवास ही नहीं अवाम भी अपने लिए बासी इफ्तिखार समझते। गालिब तबक़े अशराफिया यानी तबक़े खवास के नुमाइंदा थे जिनके अखलाक व आदात का मियार निहायत बुलंद था। गालिब की पैदाइश आगरे के रईसाना माहौल में हुई। उसी माहौल में उन्होंने संभाला और उसी माहौल में परवरिश पाई और शादी भी दिल्ली के रईस इब्ने रईस घराने में हुई। उस दौर में आगरा और दिल्ली दोनों मुगल तहजीब के मरकज माने जाते थे। लिहाजा उस तहजीब की खामियां नुमाया खुसूसियात गालिब की जात में मुज्तमा है और उनकी तबीयत में खुद पसंदी, खुददारी, वज़ादारी रच बस गई है। चूंकि बचपन की से शेर हुई उनकी गुत्थी में पड़ी हुई थी। इस सुहाग के साथ जब दिल्ली में वारिद हुए तो उमरा और उसा की अवलीन सफों में नुमाया जगह मिली और दिल्ली की तहजीबी रवायात के अमीन बन गए। गालिब ने उन तहजीबी अक़दार की पासदारी इस दर्जे दिलसोजी और दिलदगी के साथ की कि वो एक दूसरे के लिए लाजिम और मुल्जिम बरकरार पाए। यही वजह है कि गालिब की शख्सियत का मुताला एक तरह से उनके अहद की तहजीबी अक़दार का मुताला भी है। हाल के बयान करदा वाक़यात की रोशनी में गालिब की शख्सियत के नुमाया जौहर जो शख्सियत को दिलावेज और बेमिसाल बनाने में कलीदी रोल अदा करते हैं, उसने इत्तेफाक से गालिब की जात में पूरी शर्ह व सबक के साथ जलवा करते। खुशखल्की, गुफ्ता मिजाजी, अहबाब पसंदी, मुखरबा परवरी, शागिर्द नवाजी और उन सब से बढ़कर उनकी सूफी मंशी हिंद मुशरबी जिसने गालिब को सुलहकुल सबा अदा की। यहाँ ये नुक्ता काबिल गौर है कि ये सारी खुसूसियात तो उस दौर के हर जी रुतबा शख्सियत का तुर्रा इम्तियाज भी रही। उसमें भला गालिब का कमाल क्या है? ये सच है कि तमाम खुसूसियात तबक़े अशराफिया का खासा थी, मगर गालिब ने जिस यकीन मोहकम के साथ अक़दार को ऐसे नज़ाई हालात और हवादिस के जमाने में भी अपने सीने से लगाए रखा, ये सिर्फ गालिब और गालिबी का कमाल है। आपके पास 5 मिनट है। गालिब का ये वो इम्तियाज है जिसने उनके कलाम को, उनकी शख्सियत को आलमी अदब में जगह दी और उसकी सताइश और सिले की ख्वाहिश में हाली ने उनके कारनामों को अदब में जावदारी मकाम बना दिया, का हामिल बना दिया। गालिब की इनफरादियत को हाली की दर्दमंदाना इंतहादी बसीरत ने इन अल्फाज में वजाहत की है। अगरचे मिर्जा अपनी शायरी का सिक्का इस वजह से कि जमाना उसका अंदाजा करने से आजिज था, पब्लिक के दिलों पर जैसा कि चाहिए था बिठा नहीं सके, मगर उससे अखलाक, उसने माशरत, सुलहुल मुशरिक से उन्होंने एक आलम को मुस्तखर कर लिया था। कतई नजर शागिर्दों और मुस्तफीदों के दोस्तों और हवाखाहों की तादाद भी सैकड़ों से गुजरकर हजारों तक पहुंच रही थी। हर एक के साथ उनका बर्ताव का तरीका ऐसा मेहरंगीज था कि हर शख्स अपने तई उनके मखसूस तरीन दोस्तों में शुमार होता था। गरीबों और मोहताजों को अपनी दस्तरस से बढ़कर खबर लेनी, नौकरों और लगे बंधुओं को उसरत के वक्त अपने से अलग ना करना, दरमानगी में दोस्तों की इमदाद करनी, उनकी मुसीबत पर मिस्र यगानों के अफसोस और उनके साथ हमदर्दी करना, हर हाल में पासे वज़ा और खुददारी को हाथ से जाने ना देना, मजहबी तासुबात से पाक होना, हर मजहब और मिल्लत के दोस्तों के साथ सफाई और खुलूस से मिलना, इसी किस्म की वो तमाम खुसूसियात जो दारुल खिलाफा की करीम सोसाइटी का जेवर समझी जाती थी, उनकी जात में जमा थी। खिलत फरोख्त करवा कर इनाम देने वाला वाकया उनकी वज़ीदारी और गरीब परवरी का शाहिद है। खिलत बरदार चौकीदारों को इनाम से सरफराज किए बगैर लौटा देना उस अहद की जागीरदाराने वाला रवायात और वज़ीदारी के मुनाफिक था। मैं इसको छोड़ रही हूँ। गालिब की गरीब परवरी लगे बंधुओं से हर दर्जे 4 मिनट हो जाने के बाद मुझे आवाज दीजिए, मैं 1 लाख खाती करूंगी। लगे बंधुओं से हद दर्जे हमदर्दाना सुलूक का एक तशदीद वाकया जलील मानकपुरी ने भी हजरत अमीर बिनाई के हवाले से बयान किया है, जिसमें गालिब की शख्सियत का एक और मुतासिर पहलू सामने आता है।
जलील मानकपुरी रकम दराज है। रामपुर में एक सखे ने इमदाद तलब की थी। लड़की का अब दरपेश है, उन्हें इमदाद का वादा कर लिया। इत्तेफाक से रामपुर से रुखसत होकर दिल्ली को चले। रुखसताना ना मिला, शायद नवाब साहब को ख्याल ना रहा। अमीर बिनाई को ख्याल आया तो नवाब साहब से अर्ज करके रुखसताना भिजवा दिया। उनकी पालकी वही रखवा ली और चौकीदारों से कहा फलां सफे को मेरे पास भेज दें, उससे वादा कर चुका हूँ। मगर जब वो आया और उसको रुपया दे चुके तब पालकी उठाई गई। ये वो वाकया है जो गालिब की दर्दमंदी गरीब परवरी की गमाजी कर रहा है। इस तरह उनकी शायरी और नस्ब दोनों की जावजा आलमी इंसानी कदरों के गजब रेज़े हमें दावत नज़ारा देते हैं और नज़्ब को खुशादगी और उससे अदा करते हैं। उन्हीं खतरों के तुफैल हुस्न मलाल के बावजूद मायूसी के सायों से गालिब किसी हद तक महफूज रहे और उनकी जिंदगी में जिंदादिली से भरपूर मकतूबात का मुताला करते हुए खारी कभी शर्मिंदगी के एहसास से दो चार नहीं होता। गालिब की शिकस्त जिंदगी हौसला और उम्मीद जगाने का काम करती है। जो कोई गालिब से पहली मर्तबा मिलता, उनकी शख्सियत का ऐसा प्रोविता हो जाता कि दोबारा मिलने की तमन्ना लेकर उनकी मंजिल से निकलता। गालिब ने दोस्तदारी का जो आला तस्वुर अपने अशार में दिया है ताकि उस पर कायम रहे। ये कहाँ की दोस्ती है, ये बने हैं दोस्त नासिर, कोई चारा साज होता, कोई गमगुजार होता। दोस्तों की चारा साजी और गमगुजारी में गालिब हद दर्जे संजीदा है। उसकी मिसालें दी जा सकती हैं। जो हुदूद गालिब ने अपने करीबी दोस्तों को लिखे, आज भी उनसे दर्दमंदी, यगानगर, खुलूस और मोहब्बत की खुशबू एक एक लफ्ज से फूटी पड़ती है। दोस्तों के हुदूद का बर वक्त जवाब भेजना उनके नजदीक फर्ज ऐन बजा लाने के मुतरादिफ था। दोस्त तरह तरह की फरमाइशें करते, उनको पूरा करना गालिब जरूरी समझते थे। दोस्तों के हल्के में जिन पर गर्दिश जमाना ने सितम ढाया था, उनका हाल देखकर गुस्से और हीले बहानों से उनकी दिलजोई की कोशिश करते। एक मर्तबा उनके दोस्त चीन की फगल पहन कर आए जो कभी बड़े खुश पोशाक हुआ करते थे। गालिब से उनका हाथ देखा न गया जब तक उनकी कम कीमत फगल उतरवा कर अपनी कीमती फगल न पहना दी, उन्हें चैन न आया। उनकी तबीयत में मुरव्वत और लिहाज बहुत बड़ा हुआ था। नातवानी और ज़ौक़ के बावजूद आखिर रूह में गजलों की इस्लाह से घबराने लगे, लेकिन बावजूद ज़ौक़ के कोई गजल इस्लाह के बगैर नहीं लौट आई। खलील अहमदी के बावजूद उनका हौसला फराख था। शायद ही कोई साइल उनके दर से नामुराद लौटाया जाता था। गालिब की देवड़ी के सामने लंगड़े लूले अपाहिज मर्दोजन हमेशा पड़े रहते। गालिब की तंगदस्ती की वजह जरूरतमंदों और मोहताजों की विसात से बढ़कर मदद करने की वजह थी। गालिब अपने दिल में खिदमत खल्क का किस कदर शौक और जज्बा रखते हैं, उन्हीं के खत के इक़्तिबास से उनका शेर मुलाहिज़ा कीजिए। कलंदरी, आजादी और ईसा और करम के जो दुआई खालिद ने मुझ में भर दिए हैं, बखतरे हजार एक भी ज़हूर में ना आए। ना वो जिस्मानी ताकत की एक लाठी लूं और उसमें एक शतरंजी और एक टीम का लोटा मासूम की रस्सी के लटका लूं और प्यादा पा चल पड़ूं। ना वो दस्तगा के एक आला का मेजबान बन जाऊं। मैं तकरीबन आधा मिखाला अपना छोड़ के कंक्लूड कर रही हूँ। मुझे पता नहीं इसकी वजह क्या है, बाद में पता भी चल जाएगी। हाँ, जी मैं लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ पढ़ती हूँ। लिहाजा गालिब ने कुदरत ने गालिब को इल्म आगई का ऐसा इरफान अता किया, शायरी का खुदादार मलिका जो लाखों में मुमताज और मुनफरिद बनाती है, सेहत की ऐसी कामना की जो फिक्र अमल की तैयारी गोशों को मुनव्वर करती है, दिल ऐसा फराख और बुलंद हौसला जिसमें तासुब के सिवा हर चीज के लिए जगाती। मोहब्बत तमाम दूसरी इंसानी कदरों में पहली सीढ़ी की सी अहमियत रखती है और ये पैगाम मोहब्बत कोई आम पैगाम नहीं है। खुदा के हर नेक बंदे फलसफी ने उसे अपने अंदाज में हर दौर में दोहराया जरूर है। ये बात असर बिन शम्स है कि फातिह आलम वही होगी। कुल आलम इंसानियत के दुखों का दवा भी उसी के पास है।
ये एक अब्दी कानून है जिसे रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाया, खुदा की मोहब्बत का दावा करते हो तो उसके बंदों की खिदमत करो, करके दिखाओ। यह खिदमत चाहे अदब में, शायरी में, अदब में हो, शायरी में हो, कहीं भी हो, उसे आम करने की हद जरूरत है। शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर जुबैदा बेगम साहिबा। मैं डॉक्टर राही फिदाई साहब से, जो पूरी उर्दू की अदबी दुनिया में, पूरे बर-ए-सग़ीर में एक अहम नाम है, एक शायर की हैसियत से, मुश्किल पसंद शायर की हैसियत से, एक मुहक़्क़िक़ की हैसियत से, मुरत्तब की हैसियत से पूरी उर्दू की अदबी दुनिया में जाने जाते हैं। कई किताबों के, बल्कि हम बेशुमार लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेशुमार किताबों के वो मुसन्निफ़ हैं। मैं उनसे बहुत ही अदबन, मेरे बुजुर्ग हैं, अदबन दरख्वास्त करता हूं तो अपने बता। उन्वान है कलाम गालिब और इंसानी अखलाक। मिर्जा गालिब फलसफे इंसानियत के नफ्सियाती शायर हैं। फलसफा और नफ्सियात का ये इज्तिमा, वो भी अदब आली के लतीफ सिंध शायरी में एक अनोखी सोच की रमाज है। दीवान गालिब के मुरत्तिब व नक्काद अली सत्तार जाफरी का इकरार है कि उसने अपने हर तजर्बे को, जो एक इंतहाई लतीफ जमालियाती ज़ौक़ रखने वाले ज़हन की कारफरमाई थी, इंसानी नफ्सियात की आग में तपाकर पिघलाया है, कलेसे की कसौटियों पर घसा है और फिर शेर की शक्ल में डाला है। तब उसके यहाँ एक आलमगीर और आफाकी शायर का लहजा पैदा हुआ और वो जिंदगी के हर लम्हे का शायर बन गया। बात सिर्फ इतनी नहीं है, गालिब का नफ्सियाती तजर्बा भी ये तकाजा करता है कि माहौल के असरात को नजरअंदाज न किया जाए। गालिब की शायरी के फिक्री अनासिर और फलसफियाना मिजाज से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए रस्मी ख्यालात और गजल के रिवायती मौज़ूआत के पैदा किए हुए तज़ादात के बावजूद कायनात और इंसान के मुताल्लिक़ गालिब के हावी रुझानात का अंदाजा करना दिलचस्पी से खाली नहीं रहे। इंसानियत और अक़दार दोनों अरबी अल्फाज हैं। इंसान उनसे मुश्तक़ है जिसके माने मोहब्बत करना, मानूस होना और सुकून क़ल्ब पाना है, और अक़दार क़द्र की जमा है जिसके माने कवी होना, अंदाजा करना, फैसला करना, इज्जत करना वगैरह है। अक़दार समाजी इस्तिलाह में अच्छाई, बुराई और हुस्न ख़ुबा से मुताल्लिक़ किसी फर्द या ग्रोह के तसव्वुरात का नाम है। अक़दार का उमूमी इस्तेमाल मक़ाम मदह में होता है। इंसानी अक़दार से मुराद जिंदगी की वह तमाम जमालियात हसनात हैं जिनकी बुनियाद उन्स और मोहब्बत पर हो, और उन अक़दार को बरूएकार लाने की वजह से तवानियत क़ल्ब और तस्कीन रूह का हासिल होती रहे। अगर इंसान सिर्फ हैवान नातिक़ होकर रह जाए और उसके गुफ्तार और किरदार में इंसानी अक़दार की कारफरमाई न हो तो महज आदमज़ाद यानी आदमी कहलाएगा, मगर वो किसी भी सूरत इंसान कहलाने का मुस्तहिक़ नहीं होगा। उसी फिक्र को गालिब ने अपने मुनफरिद शेरी उस्लूब के ढांचे में ढालकर इस तरह पेश किया, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान। हर हुस्न खूबी की असल रूह इश्क़ व मोहब्बत है। उसी नुक़्ते जहाँ के इर्द गिर्द जुमला इंसानी कदरें दायरा दर दायरा घूमती रहती हैं। उसी मफ़हूम को ख्वाजा हाफिज़ शिराज़ी ने इस तरह अदा किया, बदी रवाक़े ज़बरजद नविश्तांत बज़र कि जुज़ लिखो ये अहले करम नख़ाहरमान। मिर्ज़ा गालिब के लतीफ़ ज़ौक़ शेरी ने इस मज़मून को नया पैरा बख्शा है। इश्क़ से तबीयत ने ज़िस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाई। इंसानी काविशों में हुस्न ख़ुब की याफ्त उसके मुरत्तब शुदा असरात और समरात की वजह से होती है। किसी भी काम की शुरुआत तो अच्छी हो मगर उसका नतीजा बुरा निकले तो वो सही नामशकूर और कार अबस कहलाता है। गालिब ने बड़ी खूबी से इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई, कतरा दरिया में जो मिल जाए तो दरिया हो जाए, काम अच्छा है वो इसका माल अच्छा है। उसने फ़रोग़ शमा दूर है असद, पहले दिले गुदाख्ता पैदा करे कोई।
جامعہ دکن حضرت شاہ کمال نے اسی مفہوم کو ایک نیا رنگ دے کر بہت بلند کر دیا. آپ نے فرمایا دلے بے خطرہ مظہر ذات است، دلے بے خطرہ مظہر ذات است، آبے بے موج عین مرآت است. انسان کے قلب و نظر میں الفت و محبت جاگزی ہو جاتی ہے تو وہ خلق خدا کی خدمت کو ہر کام پر مقدم رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی انفرادی عبادتوں اور ذاتی ریاضتوں کے مقابلے میں مخلوق کی خدمت کو ترجیح دینے میں کوئی تکلف محسوس نہیں کرتا. جیسا کہ شیخ سعدی نے فرمایا طریقت بجز خدمت خلق نیست بتسبیح ہو سجادہ ہو دلخ نیست. غالب نے اسی فکر کا اظہار اپنے انوکھے اور بظاہر غیر مانوس لفظ و لہجے میں بڑی عمدگی سے کیا ہے. اپنا نہیں وہ شیوا کے آرام سے بیٹھے، اس در پہ نہیں بار تو کعبے ہی کو ہوا ہے. کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یارب، کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یارب، ایک آبے پا وادی پرخار میں آبے. سینے کا داغ ہے وہ نالا کے لب تک نہ گیا، خاک کا رزق سے وہ خطرہ کے دریا نہ ہوا. کرتا ہوں جمع پھر جگرے لخت کو عرصہ ہوا ہے دعوت مشگان کیے ہوئے. جامع ہر ذرہ ہے سرشار تمنا مجھ سے، جس کا دل ہوں کہ دو عالم سے لگایا ہے. جس انسان کے دل و دماغ میں اپنے بزرگوں کے افکار کی پاسداری رچی بچی ہے وہ سادگی اور شائستگی کا پیکر معلوم ہوتا ہے. قدرت کی طرف سے اس شخص کے مزاج میں خاکساری، بے نفسی، تواضع و انکسار کی جلوہ گری ودیت کی ہوئی ہوتی ہے. غالب نے انسانی قدروں کے اس نمایاں پہلو کو جدید استعاروں اور نادر تشبیہوں کے ذریعے بڑے ہی خوبصورتی کے ساتھ اجاگر کیا ہے. اس تعلق سے چنچے ملازم اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا ساغرے جب سے میرا جان سفارت ہے. دائر نہیں حرم نہیں در نہیں آستا نہیں، بیٹھے ہیں راہ گزر پہ ہم کوئی ہمیں اٹھائے. ہم بھی تسلیم کے خوب ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت ہی سے، بنا کر فقیروں کا انگریز غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونا، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. کیوں نہ ٹھہرے ہدف ناوقت بیدار کے ہم، کیوں نہ ٹھہرے ہدف ناوقت بیدار کے ہم، آگ اٹھا لاتے ہیں اگر تیر خطا ہوتا ہے. غالب کے خیال و فکر میں انسان صرف ایک فانی مخلوق نہیں بلکہ وہ حسن مطلق کا مرتبہ جمیل ہے. وہ بظاہر کائنات کی دیگر مخلوق کی طرح فانی تو ہے مگر وہ اپنے بلند کردار اور عمدہ اخلاق کی وجہ سے اپنے باطن میں باقی باللہ ہونے کا احساس جگاتا رہتا ہے. اس کائنات کا ہر ذرہ، ہر نقطہ، آسمان و زمین اور کل عالم اسی کی آرائش جمال کی تحسین و تکمیل کے لیے بنائے گئے ہیں. اسی لیے خالق کائنات و مالک ہمجہات نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یعنی اس نے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے ان سب کو اپنے حکم سے تمہارے لیے مسخر کر دیا. ان میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور فکر کرتے ہیں. غالب نے اسی مضمون کو جدت ترازی اور ندرت بیانی کے ساتھ اپنے فارسی کلام میں اس طرح پیش کیا ہے. ارچے در مبدع فیاض و آنے منس گلے گل جدا ناشند ناشدہ اشاق بدامان منس. زما گرمست ای ہنگامہ دنگر شور ہستی را قیامت بھی دمت از پردے خاکے کے انسان. اسد بموج گل در تلس میں گنج قفص خنام تجھ سے سبا تجھ سے گلرساں تجھ سے. غالب چونکہ انسانی اقدار کی قوت بے قراری کے قائل و حامل ہیں، حامی ہیں، اس لیے ان کے یہاں اس دنیا کے محدودیت بچوں کے کھیل تماشے سے زیادہ وقت کی حامل نہیں ہے. اس ضمن میں غالب کے درجہ سے اشعار قابل توجہ ہیں. ملاحظہ ہوں بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے. انسان کی اس وسعت فکر کے مقابلے میں احساس رنج و راحت کی کوئی جداگانہ حیثیت باقی نہیں رہتی.
वसी और इस नजरिए हयात का हामिल इंसान अंधों और गम को मसरत और शादमानी से मामूली एहसास से बदलने में कामयाब हो जाता है। उसी की तरफ इशारा करते हुए गालिब ने कहा, रंज से होकर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। लिखते रहे जुनू की हिकायतें वो जगह हर चंद उसमें हाथ हमारे कलम हुए। खानाज़ादे जुल्फ हैं जंजीर से भागेंगे क्या, हैं गिरफ्तारे वरना जिंदा से घबराएंगे। इंसानियत की तमाम कदरें इस्लाम की मरहून मिन्नत हैं। इंसानियत की तमाम कदरें इस्लाम की मरहून मिन्नत है। जैसा कि इंसानियत उनसे मोहब्बत का नाम है, उसी तरह इस्लाम सराफा सलामती और अमन व आशती का पैगाम है। इस्लाम के मानने वालों पर खुदाए बरतर की तरफ से ये जिम्मेदारी आयद की गई कि वो इंसानियत की फलाह और सलाह के लिए अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर यानी अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकने का फरीज़ा अंजाम दे। गालिब ने इस हकीकत को बड़ी सादगी और गुलकारी के साथ बयान किया। देखो मुझे जो दीदे इबरत निगाह हो, मेरी सुनो जो गोश नसीहत नियोश है। रोक लो अगर गलत चले कोई, बख्श दो अगर खता करे कोई। गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है ये सब अच्छा कहे। हासिल कलाम ये कि गालिब ने अपने कलाम के जरिए इंसानी खतरों की इस तरह हसीन और जमील अक्कासी की है और दिलकश और दिलरुबा उसलूब में कड़वी और कसेली बातें भी इस तरह कह दी जिससे सामी या कारी महसूस तो होता है मगर मुकद्दर किसी सूरत नहीं होता। गालिब ने वजह फरमाया है और भी दुनिया में सिफतमंद बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज है। शुक्रिया। आज दूसरे इजलास में 4 मकाले पेश किए गए। इन मकालों के बारे में सारे ख्याल से पहले मैं 2 बातें आपके गुज़ार करना चाहूँगा। कल जो कलीदी इफ्तिताही जलसा हुआ और पेश किया गया, उसमें गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस अहमद ने बहुत ही अहम बात की, बल्कि कहना चाहिए कि बहुत अहम ऐलान किया कि दीवाने गालिब का कन्नड़ में तर्जुमा किया जाएगा और उसकी इशाअत अमल में लाई जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी डायरेक्टरशिप के जब तक उनकी डायरेक्टरशिप है उस वक्त तक पूरी हिंदुस्तानी जुबानों में गालिब के दीवान को शाये करने की वो ख्वाहिश रखते हैं। खुदा करे कि उनकी ख्वाहिश पूरी। कन्नड़ा के हवाले से ये बात इसलिए अहम है कि कन्नड़ा हमारी रियासत की अहम इलाकाई जुबान है और मेरा ऐसा मानना है कि महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक का ही एक ऐसी वाहिद रियासत है जहाँ इलाकाई जुबान का अदब मुंतखब हो रहा है, जिसमें डॉक्टर माहिर मंसूर का एक अहम रोल है। इसी के साथ साथ उर्दू अदब भी कन्नड़ा में मुंतखब हो रहा है। मेरी मालूमात के हद तक मैं ये समझता था कि गालिब के दीवान का कन्नड़ में तर्जुमा नहीं हुआ है। डॉक्टर सत्या पुराणिक ने कुछ मुंतखब फजलों का तर्जुमा किया है, लेकिन कल खलील मामूद साहब ने बताया कि गालिब के दीवान का पूरे दीवान का तर्जुमा कुछ फजलों का हुआ है। मगर हमारी ये ख्वाहिश है कि पूरे दीवान का अगर तर्जुमा हो जाए तो बेहतर है और पूरा दीवान कन्नड़ में शाये हो तो ये अच्छी बात होगी। दूसरी बात जो डायरेक्टर इदरीस अहमद ने कल कही कि वो मेहमानों को फूलों का गुलदस्ता पेश करने के बजाय किताबों का तोहफा देते हैं, ये बड़ी अच्छी रिवायत है। सर शमशुल हुदा साहब ने, डॉक्टर जंतर इकबाल ने, डॉक्टर जुबैदा बेगम साहिबा ने और डॉक्टर राहिब शुमाई साहब ने गालिब के कलाम में जिन बेशतर इंसानी अक़दार का हवाला आया है उसको उन्होंने अपने मकालों में पेश किया। जैसे शमशुल हुदा साहब ने खुदाई और हिम्मत का जिक्र किया, तो गजनफर इकबाल ने अखलाकी और इंसानी अक़दार के बीच जो एक हल्का सा फर्क है, हल्की सी चिलमन है, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। हमारे रेडियो की जुबान में उसे ओवरलैपिंग कहते हैं, अखलाकी अक़दार और इंसानी अक़दार में ओवरलैपिंग होती रहती है, उस तरफ उन्होंने इशारा किया। डॉक्टर जुबैदा बेगम का जो मज़मून था वो थोड़ा सा तवील था, लेकिन उन्होंने पूरे आलमी पस मंज़र में इंसानी अक़दार को समझने की और उनकी उसके तायुन की कोशिश की। तो जरा गालिब की तरफ बहुत देर से आई वो, लेकिन आई।
लेकिन तब तक कुछ वक्त गुजर चुका था, लेकिन उनका मकाला भी बहुत ही फिक्र अंगेज था और मुझे यकीन है कि जब वो छपेगा तो उसको पढ़ करके हम एक नई रोशनी हासिल होगी। राही फिदाई साहब ने अखबार की मुबादियात पर गुफ्तगू की और सबसे अच्छी बात है कि इन चारों निकाला निगारों ने गालिब के मकबूल अशार का इस्तेमाल नहीं किया, कम मकबूल अशार का अपने निकालों में इस्तेमाल किया। इंसानी अक़दार गालिब की शायरी में, उर्दू शायरी में इंसानी अक़दार के बारे में कम बल्कि बहुत कम लिखा गया है। तो बड़ी अच्छी बात है कि आज के इस सेमिनार में आलमी इंसानी अक़दार के हवाले से गालिब की शख्सियत और उनके फन को समझने की एक बहुत ही कामयाब कोशिश की जा रही है। इन 8 मकालों में बहुत सलीके के साथ, करीने के साथ मकाला निगारों ने अपनी बात पेश की। मुझे लगता है कि इन 8 मकालों के जरिए बहुत हद तक हमने आलमी अक़दार के हवाले से गालिब की शख्सियत और फन को समझने में कामयाबी हासिल की है।